something about emergent literacy during foundational years. Does everybody remember? Yes, ma'am. Yes, Right. ma'am. So you were talking about the emergent literacy skills during 5 years, right? And especially the foundational years or 3 to 6 years, that how pre-reading and pre-writing skills could be developed in the children, right? And we had done some activities to understand about the language rich environment. Do you remember we talked about language rich environment? That everything in the classroom environment should be labeled. Children should do name card activities. We should write in the lower case. There has to be directionality, left to right. Do we remember that about the print rich environment? Yes, ma'am. Yes, good. And then we started talking about that there are 4 skills, LSRW. What are those 4 skills? Can you tell me what's the full form? Listening, speaking, reading, writing. Lovely. And we said that speaking and listening are more Language. of the language, Part. and reading and writing skills are the part of the literacy Literacy. part, right? Yes. And we had started learning more about that how could we in the 3 to 6 years age group, how could we build about the literacy skills, right? The which we also call the pre-reading skills and the pre-writing skills. Remember? Yes, ma'am. So what were some of the things we discussed about what kind of activities we could do to talk about the emergent reading skills? We did couple of activities. Remember, we did James activity, Ma'am, picture reading. picture reading. Lovely, Ruchi. Very nice. And in the picture reading, we were encouraging children to Enhance vocabulary, new words. They very will good. new words. Yes, ma'am. And comprehension. Comprehension Comprehension. means understand the meaning of the Yes, ma'am. text. And we Yes. talked about that even the picture is a text. Yes, ma'am. A poster is a text. An advertisement is a text. Everything is a text and everything is represented through symbols, right? So in the emergent reading skills, it is also the understanding of making meaning, comprehending, and vocabulary of the symbols that children see around. All right? Yes, ma'am. Good. Any questions so far about that? What we discussed? So we had done this small activity, if you remember, a picture reading activity. Yes? Everybody Yes. remember? Yes, We had ma'am. asked simple questions. The child was able to understand the question, answer the question, and also give a vocabulary. Then we asked them to draw these characters also, right? So let's quickly look at again the components of early language and literacy. So we were talking about emergent literacy. I'll just turn on my screen. Print awareness, picture reading, scribbling and drawing, book handling, reading with comprehension. Most important thing, understanding the meaning and thinking about text. Love for reading,
exposure to books, reading habit, appreciation of literature, right? And then we talked a little bit about where listening skills, speaking and conversation, vocabulary and growth. And we talked about the routines and regimes like rhymes and stories, quality circle time in which we could bring about these pre-reading skills, right? Yes, ma'am. Any question after looking at this? Because what you see on your right hand side from the oral language, phonological awareness, decoding, and fluent reading, this we are going to talk in our next week. Right now, we are talking about literacy skills, pre writing and pre reading. Okay. So, very carefully, please give it a mindful read what is written here. The components of early language and literacy. Okay, let's look at the first point here, emergent literacy skills. So, what are these points? Developing awareness about print. Awareness about print means to understand that this is a language. These words represent some meaning, right? Pretend reading, reading pictures, logographic reading, reading words as pictures, right? So if there is a smiley given, if there is an angry face, if there are some emojis, what were we trying to do in that book after the James story? Children were doing logographic reading, right? They were looking at the feeling angry, sad, upset, drawing and sibling. So this part is pre-reading, and now this part, drawing and scribbling to represent and express something, is your pre-writing. Because now you are able to express. Through writing, what do we do? Express, right? Concepts about print include knowing the printed words as symbols, कि जो हम सुनते हैं और जो हम लिखते हैं ये सारे एक इनकी एक फॉर्म है, इनकी एक स्ट्रक्चर है और ये एक सिंबल्स हैं. और ये जो फंक्शंस एंड फॉर्म्स ऑफ प्रिंट, एग्जाम्पल स्टोरी बुक, राइट? तो बच्चे को हम बताते हैं कि ये न्यूज़पेपर है, ये मैगजीन है, ये होटल का मेन्यू है. हम बताते हैं ना बच्चों को, जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो ये ब्रोशर है, ये लीफलेट है. ऑल दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बच्चों के पास होना कि प्रिंट किस किस फॉर्म में आता है, राइट? सॉरी. Knowing that writing mostly has a left to right orientation, very important, except Urdu, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. That a word is preceded and followed by a space, जिसको हम बोलते हैं conventions of writing. That हमारी English language, हिंदी, पंजाबी सब लेफ्ट टू राइट शुरू होते हैं. उनकी ओरिएंटेशन क्या है? लेफ्ट टू राइट. और हम सेंटेंस का कन्वेंशंस क्या होती हैं? कैपिटल, फिर स्पेस एंड एंड विद द फुल स्टॉप, राइट? That there are letters, words and sentences in a printed text. Knowing punctuation marks and how words differ in length. कुछ words बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, right? What do you think is a point 4 means? Book awareness and ways of handling book. आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? बुक अवेयरनेस और वेज ऑफ हैंडलिंग बुक. इमर्जन लिटरेसी स्किल्स के अंदर एनईपी हमें बोल रहा है कि ये सारी चीजें हमें डेवलप करनी है बच्चों के अंदर. तो ये जो फोर्थ पॉइंट है, बुक अवेयरनेस एंड वेज ऑफ हैंडलिंग बुक, ये क्या चीज है? मैम बुक्स को प्रॉपरली रखना, जैसे बच्चे गलत तरीके से फेंक दें कर दें तो उन्हें उस चीज के बारे में बताना. ओके.
Okay. Thank you, और Ruchi. बुक्स को डर्टी नहीं करना. Okay, Ruchi. Taking care of the books, right? Yes, yes. Okay, so that's what you are saying under handling of a book. Okay? Yes, ma'am. Yes. Anything else? Think about when we are talking about literacy skills, right? तो book awareness और handling book का क्या मतलब होगा? By the books, ma'am, we can express them. We can express a feeling by the pictures also. Okay. Good, Ruchi. Anything else that comes to your mind? इमर्जन लिटरेसी स्किल्स में बच्चों को बुक अवेयरनेस होना. एक चीज आपने बोला कि बुक्स को ढंग से रखना, उनको गंदा नहीं करना, उनको फाड़ना नहीं, राइट? ऐसा तो हमारे टॉयज के लिए भी है ना? टॉयज के लिए भी हम बोलते Yes, हैं ma'am. कि हमें तोड़ना नहीं चाहिए, हमें उनको ढंग से रखना चाहिए, राइट? हमारी नोटबुक्स के लिए भी है. What else comes to your mind when you think about कि ये एक लिटरेसी स्किल कैसे हो सकती है? लिटरेसी का क्या मतलब है? लिखना और पढ़ना. तो बुक अवेयरनेस और हैंडलिंग Ma'am, बुक we का क्या? can give them introduction of letters. ओके, यू आर वेरी क्लोज, अ लिटिल मोर. बच्चों को बुक्स के बारे में बताना कि इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, पिक्चर के थ्रू उनको सिखा सकते हैं. वेरी गुड कुलदीप जी. What are the basics of writing? How to express our feeling in writing? ओके, वेरी क्लोज, वेरी टू इम्पोर्टेंट पॉइंट. जब आपने बोला कि कुलदीप जी आपने बोला कि बच्चों को ये बताना हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं. ऐसे कैसे पढ़ सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. ये मेरे पास एक बुक है, सबको नजर आ रही है, राइट? नो क्या मैं इसे ऐसे पकड़ सकती हूँ? नो नो ऐसे? नो ऐसे? नो. कैसे शुरू होएगी? मैं एक छोटा सा 3 साल का 2.5 साल का बच्चा हूँ कुलदीप जी. तो आप सबसे पहले जब कोई किताब लेके बैठेंगे तो मुझे क्या बताएंगे उसके बारे में, कि किताब को पकड़ते कैसे हैं? यस मैम. हाँ है ना? उस हाँ उनको जो फर्स्ट पेज है उसको बताएंगे कि बेटा ये वेरी वाला, गुड. ये आपका फर्स्ट पेज है, इसको ऐसे ऐसे करके ओपनिंग पेज जैसे वो और बताएंगे. इस फर्स्ट पेज पे कुलदीप जी बताइए क्या लिखा होता है, क्या बना होता है इस बुक, इस पेज को क्या बोलते हैं? ये कवर पेज. वेरी गुड, कवर पेज. हाँ और जी. ये कवर पेज जो होता है वो बुक के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि अंदर आपका कौन सा सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए हाँ और जी. सोचिए. आप छोटे से 3 साल के बच्चे को इंग्लिश हिंदी मैथ्स नहीं पढ़ा रहे. ये सोचिए ओके. कि आप क्या पढ़ाएंगे एक छोटे बच्चों को. किताब जो पढ़ता है, पिक्चर्स की बुक होगी हाँ जी. हाँ या जी. फिर कोई स्टोरी बुक होगी. तो ये हाँ कवर जी. पेज क्या बताता है कि वो किस चीज के बारे में है. हाँ जी. ये हाँ. उसका क्या लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इस बुक का? Name of the book. नेम ऑफ नेम. द बुक को क्या बोलते हैं? टाइटल. टाइटल. Title. सॉरी. हाँ टाइटल. Title of the book. What do you think? Are you guys able to see my book? No, ma'am. Not visible मैम. Not visible. Properly. Okay. Okay. This could be the reason because this is a little blurred. The background is blurred. That's why. Are you now able to see my book? Yes मैम. No, ma'am. What is this? What is the title of this book? Now also not clearly visible मैम. What? Can you see the book now? Inner engineering. Not properly मैम. Yes. Inner engineering book Yes. of This is the Sakur. title of the book, right?
And what is this? Who's the author? Who's the author? Sadhguru. And what do you think this book is about? What do you think is this book about? What do you think this book is about? Magazine. No, it is it is in your engineering book, means inside So, of the there is human. somebody whose mic has to be turned off. There's a lot of background noise. I can't hear anybody. Please mute yourself. Kuldeep ji, since we started this, I would like to do it with you. Do you see a picture here? Yes, ma'am. Yes, okay. And do you see what is the title? Inner Engineering, right? Yes, ma'am. Who's the author? The author is Sadhguru. Yes, ma'am. The Sadhguru. title is Inner Engineering. Now, do you see this beautiful picture, colorful picture? Yes, ma'am. ये किसकी पिक्चर लग रही है आपको? क्या लग रहा है? ये किसके बारे में है? ये कोई सतगुरु के बारे में है। तो Yes, इसको ma'am. हम क्या बोल सकते हैं? ये सदगुरु ने अपने बारे में लिखी है। यस मैम। तो उसको उस वाली बुक को क्या बोलते हैं? हमें ये छोटे 3 साल के बच्चे को नहीं बताना, बट जब बच्चा 6 या 7 से 8 साल का होता है, फर्स्ट या सेकंड ग्रेड में, तो हम उनको थोड़ा थोड़ा बताना शुरू करते हैं दैट दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। मैं आपसे पूछ रही हूँ, राइट? ओके मैम। बट अगर एक छोटा बच्चा है तो आप उसे बुक के बारे में, जो हैंडलिंग ऑफ बुक है, एनईपी आपको कह रहा है बुक अवेयरनेस का मतलब है बुक को हम उठाते कैसे हैं। बुक को कवर पेज होता है, पहले हम कवर पेज, और फिर खोलते कैसे हैं? ऐसे। और यस मैम। पढ़ते कैसे हैं? लेफ्ट टू राइट, यस राइट? मैम। दिस, ओके। Yes, ma'am. हम ऐसे Yes, लेफ्ट ma'am. टू राइट पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हाँ। करके, राइट? बच्चों को हाँ हम कैसे सिखाएंगे कि आपने हाँ जी। ऐसे पढ़ना है, ओके? हाँ जी मैम। और इसके बाद ये क्या होता है? एंड बैक कवर। बैक कवर। बैक और कवर। इसमें क्या लिखा होता है बैक कवर में? बुक की समरी। यस मैम। और कई बार बुक के बारे में लिखा होता है Yes. कि बुक किस चीज के बारे में है। तो बच्चों को बुक हैंडलिंग मीन्स टू टीच देम व्हाट इज द टाइटल पेज, हु इज द ऑथर। ऑथर के अलावा एक बुक को लिखने में कौन से 2 लोगों का योगदान होता है? एक ऑथर होता है और एक क्या होता है? ये पिक्चर किसने बनाई है? जो पिक्चर्स बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आर्टिस्ट, जो क्या बोलते हैं उसको? Illustrator. इलिस्ट्रेटर। ओके। And this is not a difficult word. ओके मैम। आपको अगर आप 2.5-3 साल के बच्चे को भी ये बताते हैं, 3 साल के बच्चों को, इलस्ट्रेटर, ऑथर, Illustrator. लेखक, चित्रकार, ओके मैम। राइट? चित्रकार Yes, sir. जो पिक्चर बनाता है, और लेखक जो लिखता है। तो इसका ऑथर कौन है? सदगुरु। और इनके चित्रकार कौन है? ये वाला ट्रस्ट जो ये कंपनी है, इसने इसकी पिक्चर्स बनाई हैं। That is what, dear teachers, is called book awareness and handling book. And this Okay. is how National Education Policy is asking you to teach your children the awareness and book awareness, right? ओके मैम। Okay, ma'am. अब आपको सबको समझ में आया what I was trying to tell you? यस जी मैम। मैम। Good, good. So let's move. Let me share my screen with you now so that we can move to the next part. Yeah. Can you see my screen? Yes, ma'am. Good. So you saw about, we read about
Emergent reading skills as per NEP. Just 1 minute, please. I'll share once again with you. Is the next slide visible to you? Or you can see only components of early language and literacy? Yes, ma'am. Okay. So now we are coming to the next part, which is pre-reading and writing skills. And what is the part of the pre-reading and writing skills? So when we say pre-reading skills, it means that the child, foundational literacy means that the child before starting formal reading, जब वो एक बुक को फ्लुएंटली खुद रीड कर सकता है, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, दैट वी बिल्ड हिज प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले वाली जो स्किल्स होंगी जो कि रीडिंग रेडीनेस और राइटिंग रेडीनेस को इम्प्रूव करेंगी फाउंडेशनल ईयर्स में, उन एक्टिविटीज के बारे में हम बात करेंगे, राइट? So the 4 reading strategies, right, are these. Can one of you read it for me, please? What is the first strategy? Guided reading. Guided reading. Yes, guided reading. And what is the second one? Shared reading. Third is read Read aloud. aloud. एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंट रीडिंग। तो Independent जब reading. हम बच्चे को इंडिपेंडेंट रीडिंग कराने से पहले, जब तक वो अपने आप बुक को रीड नहीं कर सकते, 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा जो है, तब तक हम ऐसी क्या एज टीचर स्ट्रैटेजीज करेंगे कि बच्चों के अंदर लव फॉर रीडिंग आए, बच्चों की ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, बच्चों की रीडिंग्स फ्लुएंट हो। सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड द pre-reading skills. These are some of the pre-reading skills that we are going to build in children. And the first strategy is read aloud. इस स्ट्रैटेजी में आप पिक्चर देख रहे हैं ध्यान से? आपको दिखाई दे रही है पिक्चर? Yes, ma'am. इस पिक्चर में टीचर कहाँ बैठी है? ऊपर बैठी है। और बुक किसके हाथ में है? टीचर के हाथ में। और टीचर क्या कर रही है? टीचर रीड कर रही है। टीचर रीड्स अ बुक आउट लाउड, स्टूडेंट्स लिसन, थिंक एंड डिस्कस, and she is speaking with expression, vocabulary and comprehension. So I could read a story to you like this. So once upon a time there was a big forest, and in that forest there were trees. So this is called read aloud session, in which the children are just listening to you, but you are speaking with all the modulation. आपको चेतना मैम ने भी ये read aloud session, story sessions के बारे में बताया था। Yes, ma'am. So this is kind of reading aloud is the best one for vocabulary growth and love for reading, right? और जब आप ये read aloud सेशन शुरू करते हैं
तो आप बच्चों को बुक कवर, टाइटल, इलस्ट्रेटर, ऑथर और बुक को ये बताना कि जब भी हम बुक को पढ़ते हैं लेफ्ट करते हैं, और हम बुक्स के पन्नों को कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं या फिर हम एजेस से पकड़ के करते हैं, कॉर्नर से पकड़ते हैं, है ना? मैम। तो ये सब कुछ सिखाना इज अ पार्ट ऑफ बुक अवेयरनेस एंड हैंडलिंग बुक्स। सो बच्चों को ये बताना। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। नाउ देयर केम अ बिग monster, and then you're pointing and you're reading, right? And children are only listening to you. This is an example of a read aloud session. Got it, teachers? And what are for which age group this is most appropriate? What do you see on the screen? 3 to 4. Yes. This is a very good, जब आप 2.5 साल के बच्चे के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स रीड करने की कोई टाइम नहीं होती है। आप 1 साल के बच्चे को भी और आप 6 महीने के बच्चे को भी बुक रीड करके सुना सकते हैं, राइट? Because the child is in the sensory motor stage, but वो symbols, colors, pictures को देखकर attract होता है, उसको सेंस ऑडिटरी सेंसेस मिलते हैं जब आप एक्सप्रेशंस के साथ बोलते हैं। बट हम 3 to 4 ईयर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चे के अंदर, जब वो हमारे पास फर्स्ट टाइम स्कूल में एंटर हो रहे हैं 3 इयर्स में, तो हम उनकी प्री रीडिंग स्किल्स को बिल्ड करना सिखा रहे हैं, उनको बुक हैंडलिंग और अवेयरनेस सिखा रहे हैं। So, read aloud stories with voice modulation, reading large print books. मैंने आपसे कल बात करी थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जब वो आपके पास एंट्री एज में आते हैं, तो इतनी बड़ी पिक्चर और इतना सा टेक्स्ट हो, राइट? क्योंकि हमने बच्चों के अंदर पिक्चर की जो सिंबॉलिक थिंकिंग है उससे बच्चों को रिलेट कराना है। और ये आपका टीचर्स, मैं अभी भी आपको बता देती हूँ, अगर आप वर्कशीट्स वगैरह भी कराते हैं, ये आपका थंब रूल है। छोटे बच्चों को आप बड़े A3 पेज में, A4 पेज में नहीं, A3 पेज में बड़ी बड़ी वर्कशीट्स निकाल के दीजिए। बिकॉज बच्चे जो होते हैं विजुअली, उनको चीजें जब बड़ी आती हैं, दिखती हैं, तो उनकी कॉम्प्रिहेंशन इजी होती है। ओके? इसलिए फॉन्ट साइज छोटे बच्चों के लिए कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी एटलीस्ट between 18 to 24. Got it? Yes, ma'am. रिस्पॉन्डिंग, रीडिंग पिक्चर कार्ड्स, जो हमने एक्टिविटी करी थी, जो मैं भी आपको दिखा रही थी, लाइक दिस। और यू कुड गिव देम अ बनाना एंड द बनाना इज रिटन, देन an orange is written, or a feeling card. So picture books, your picture cards, and responding to simple question. So what do you think, Arpita? Where are they going? अच्छा, इसने कौन से कलर की शर्ट पहनी है? आपकी बुक में आप स्टोरी कर रहे हो, बट यू आर डूइंग इट रीड अलाउड विद देम। क्योंकि हमारे लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बच्चों की वोकैबलरी और मीनिंग, कि बच्चों को मीनिंग पता चले कि वो वर्ड क्या है, क्यों हो रहा है, कैसे है, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाए। Sequencing stories and events, these are all the examples of pre-reading skills. पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। जेम्स की स्टोरी में पहले हम वी आर गोइंग ऑन अ बेयर हंट की स्टोरी में हम पहले जंगल पे गए, लॉन्ग वेवी ग्रास थी, फिर क्या थी, रिवर थी, फिर क्या था, माउंटेन था। या फिर हमने टर्टस और रैबिट की स्टोरी सुनी, कछुए और खरगोश की। पहले कछुआ सो रहा था, खरगोश आया, फिर उन्होंने जंगल से एनिमल्स को बुलाया, उन्होंने बोला हम रेस करेंगे। फिर थर्ड पिक्चर कौन सी थी? सीक्वेंसिंग द स्टोरी। सो व्हाट इज हैपनिंग? बच्चे की कॉम्प्रिहेंशन बढ़ रही है, बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग बढ़ रही है, बच्चे की सिंबॉलिक थिंकिंग बढ़ रही है, राइट? ड्रॉ इन रिस्पॉन्स टू द राइम्स एंड स्टोरीज। The pre-reading and the pre-writing skills, they are like a web. आपको पता है मकड़ी का जाला होता है? मकड़ी के जाले में देखिए आपके सब सारा थ्रेड एक दूसरे से जुड़े होते हैं।
तो जब हम एनईपी हमें क्या कह रहा है, जब भी हम लैंग्वेज और लिटरेसी को पढ़ाएं तो उनको एक ताने बाने में पढ़ाएं, उनको एक वेब की तरह पढ़ाएं। तो जब बच्चा प्री रीडिंग स्किल करता है, आप उनको एक स्टोरी पढ़ाते हो, उसके बाद जब हम उनको ड्रॉ करने को बोलते हो, अच्छा इसका, अब हम आज हमने खरगोश कछुए की कहानी पढ़ी, चलो सस्मिता, प्रियंका और जीनत, हम आज एक सुंदर सा इसका एक बुक कवर बनाएंगे। तो बच्चा उस स्टोरी का मेन कैरेक्टर लाकर या उसको 2-3 कैरेक्टर उससे करके एक बुक कवर बनाता है, right? That is your pre-writing skill. Identify common symbols in labels and print. अगर आपने बच्चे को उसका नेम कार्ड दिखाया तो बच्चा उसमें पहचान सकता है, या आपने बच्चे को एक इमोजीज दिखाई कि आप पिक करो आप कैसा फील कर रहे हो, और बच्चे ने पिक किया कि मैं अपसेट हूं, तो वो समझ पा रहा है सिंबल्स कैसे हैं। या आपने एरोज दिखाई, लेफ्ट टर्न करे, राइट टर्न करे। Identifying sounds of letters. The bus goes grrrr. आपने देखा है कई बुक्स होती हैं उनमें बड़ा बड़ा लिखा होता है, ग्र साउंड्स लिखी होती हैं। सो बच्चों को वो साउंड्स बोल के दिखाना कि हे एक ऑब्जेक्ट की साउंड क्या होती है। ओके, द शीप गोस बा बा, इट ब्लीड्स। ओके, and drawing the related vocabulary. All this is a part of our pre-reading and pre-writing skills. At least wherever I am telling you कि बच्चे draw कर रहे हैं, that is also the part of the pre-reading and writing skills. But वो reading से आ रही है symbols, तो हम उसको pre-reading के अंदर ले रहे हैं. Any questions, teachers? Any questions so far? No? Everything clear as water? Good. So now let's come to the next part. Pre-reading skills for 4-5 years. 4 से 5 साल के बच्चे के लिए क्या प्री रीडिंग स्किल्स होती हैं? फिंगर पेसिंग, जो मैंने अभी आपको दिखाया। फिंगर को एक हर एक लेटर के नीचे रख के आप उनको रीड कराइए। कैन यू लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली? Do you see what is he using? He is using a stick and he's pointing out at the letter. क्या आप देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the picture book is so big and the text is so big. आप फॉन्ट देख रहे हैं इस बुक की टेक्स्ट का कितना बड़ा है? Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि वो विजुअल मेमोरी बच्चे की स्ट्रांग होती है, वो बच्चे के पार्ट ऑफ हिज मेमोरी बनेगा। जितना वर्ड बड़ा होगा वो छप जाता है बच्चे के दिमाग में। सो अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज, कि यहाँ लेफ्ट से राइट, आप कुछ भी उनका टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे, पिक्चर के नीचे डॉट्स लगा सकते हैं हम, या फिर हम फिंगर से उसको बता सकते हैं कि ये ऐसे लिखा है, आई कैन सी। ओके, retell the stories and rhymes. This is also the part of pre-reading skills कि बच्चा अपनी stories और rhymes को बता सके. Describe the favorite part of the story, characters of the story. Right? He is able to identify letters, symbols, and sounds. Splat, splash, right? Splash, brrr, rrr, right? So you are trying to teach them the letter symbol also, rather than just saying apple. It is better that you read them stories and emphasize the sounds and teach it in a integrated manner rather than just one word and giving the sounds. Identifying beginning, middle and end sounds in a word. So अगर मैंने आपको पिक्चर दे दी cat, so what is the first sound? K. Second sound, third sound, t. Right? Relate with letter with the vocabulary words. Create and illustrate stories and rhyme. बच्चे अपनी खुद छोटी छोटी स्टोरी बुक्स एक स्टोरी को सुनने के बाद बनाएं. Understand the structure of a book. Structure of book क्या है? Author, illustrator, cover page, title,
बैक पेज। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द बुक। और अब हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी क्या है जो कि 4 से 5 साल बच्चों के लिए हो सकती है? शेयर्ड रीडिंग। So teacher and students, they are reading together, right? So it is written something once upon a time. So the students are also reading once upon a time. Focus on the print awareness. Focus on discussion and vocabulary building. Am I making sense, teachers? Any questions कि shared reading कैसे हो सकती है? Would you be able to do it in your classes? Yes, madam. 5 to 6-year-old. Look at the picture again. What are they doing? How are they sitting? The small group of students, everyone is reading the same book, same page. Even the teacher is at the same book and the same page. This is an example of a guided reading, teachers. Teacher in a small group. टीचर इज मैच टू द स्टूडेंट्स रीडिंग लेवल. टीचर एक वर्ड शुरू करती है. नाउ शी सेज ओके लक्ष्मी यू रीड द फर्स्ट लाइन. नाउ अर्पिता यू रीड द सेकेंड लाइन. जीनत यू रीड. एंड जहां पे बच्चे गलत कर रहे हैं टीचर मॉडल करती है. जैसे मैंने आपको बोला इलस्ट्रेटर, राइट? इट वॉज अ स्केरी नाइट. सो अगर बच्चा उसको कर रहा है scary, so the teacher says scary. Join the first 2 letters. Scary, right? So ये पूरी जो गाइडेड रीडिंग होती है उसमें आप छोटे ग्रुप्स के साथ बैठते हो ताकि आपको पता चले कि बच्चे किन किन वर्ड्स पे अटक रहे हैं और आप उनके लिए मॉडल कर सको प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग. So I could ask that, okay, fine. A child read the third line. So what does the third line says? James was feeling very sad. What do you think sad is? And the child explains. Sad means he was not very happy. Okay? Students read with support and everybody is doing decoding, fluencing and comprehension. और ये कौन से एज ग्रुप के लिए अच्छी है, अप्रोप्रिएट है? 5 to 6 Five years. to six. 5 to 6 years. Right? And what all we can do? Read stories, comprehending words and picture. Use text related vocabulary. Text related vocabulary क्या होती है अगर आप story पढ़ा रहे हैं? Once upon a time, long time ago, once lived a king. So ये सब क्या है? एक story के starters हैं. बच्चों को ये सब बताना, राइट? और अगर हम एक कोई इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें वंस अपॉन अ टाइम लिखा जाता है? No. Because what kind of text is that? That is a factual text. That is not a fictional text. Okay? So only in the stories, in the fictional text, whether it's a story, it's a rhyme, it's a fable, that you get to use the words like once upon a time. Narrate and illustrate the story. बच्चे story सुन भी रहे हैं और बच्चे illustrate भी कर रहे हैं story. Review the story. Who's the author? Who's the illustrator? Which is your favorite part of the story? Which is your favorite character of the story? Identify common sight words. आप बच्चों को बोल सकते हो. Can you please point out for me where is written under? Where is written on? Where is written to? Right? Describe and explain situation and events with fluency. बच्चे events को जो story में आ रहे हैं उसको explain कर सके अपनी thoughts के साथ. और why questions का भी आंसर दे सकते. Why do you think the wolf did not knock at the door that night? Why do you think 3 little pigs were so scared? So not only this question, but thinking questions. That is all the part of the guided reading and emergent literacy skills. Any questions, teachers? And now we move to the independent reading.
इंडिपेंडेंट रीडिंग टीचर्स इज मेंट फॉर encouraging अ हैबिट। तो बच्चा चाहे 1 साल का भी हो, तब भी अगर आप उनको बुक्स लाके देते हैं और वो ऐसे अपने आप फोटोज को देख देख कर अपनी ईगो सेंट्रिक स्पीच में, ये ऐसे हो जाता था, फिर वो ऐसे हो गया था, देखो ये गिल गया, देखो इसने टोपी पहनी है, राइट। चाहे वो उसे बोले छोटा, बड़ा, क्योंकि जो 1.5 ईयर तक वोकैबुलरी डेवलप होती है, बच्चे सिंगल वर्ड्स बोलते हैं। टूट गया, टूटू हो गया, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। But at that age and stage also, if you give books to children, they learn to have the love for reading. What are you building? Love for reading. सो ये इंडिपेंडेंट रीडिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि बच्चे को आपने चूज करके बुक पढ़ी और बच्चा इन्फ्लुएंट पढ़ रहा है। ये इंडिपेंडेंट रीडिंग मीन्स बच्चे कभी भी कोई बुक अपनी चॉइस की उठाएं और पढ़ जाएं जिसमें आप उनसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। They are just their leisure time, leisure time. Any questions, teachers? No, ma'am. No, ma'am. And now, when we are talking about the pre-reading skills, let's come to the comprehension strategies. Predicting. What do you think will happen next? मैंने आपसे पूछा, आपको क्या लगता है कुलजीत जी की ये बुक किसके बारे में होगी? आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस, रीटेलिंग स्टोरीज, उनकी एंड ऑफ द स्टोरी को बदल के। आपको क्या लगता है कि वुल्फ उस दिन कहाँ गया होगा थ्री लिटिल पिग वाली स्टोरी में? वोकैबुलरी, बच्चों को नए वर्ड सिखाना, स्कैर्ड, अफ्रेड, और क्या हो सकता है वर्ड्स? एक वर्ड के डिफरेंट सिनोनिम्स बताना, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स बताना। बिग, लार्ज, ह्यूज, एनॉर्मस। और ये वर्ड्स आप कभी बता सकते हैं, बड़ा, भव्य, राइट, तगड़ा, राइट, आप giant. gigantic, right? So all these kind of vocabulary development means आप जितने से ज्यादा synonyms बच्चों को दे सकें using expression and your hands, right? Can you look at the picture? Here there is a big book which is open and teacher is reading the book and it's written what is the animal name, what the animal looks like, what the animal does. तो इससे क्या कर रही है? थिंकिंग स्ट्रेच कर रही है टीचर्स। कौन सा एनिमल है, वो कैसा लगता है, वो क्या क्या करता है। तो आप एक अच्छे खासे एक बुक को आप इसको टर्न कर सकते हैं इन अ गुड 15 मिनट्स 20 मिनट्स एक्टिविटी, चूजिंग द स्ट्रैटेजी। आप या इसे रीड अलाउड बना सकते हैं, या आप इसे शेयर्ड रीडिंग बना सकते हैं, या आप इसे गाइडेड रीडिंग सेशन बना सकते हैं जिसमें आप 4 बच्चों के साथ बैठे हैं। ओके, यूज ऑफ विजुअल्स, एक्शंस एंड कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात कर रहे हैं किसी स्टोरी में। आपने कभी क्या वो पॉन्ड देखा है? क्या आपके गांव में ऐसा पॉन्ड है क्या? नहीं, हमारे गांव में तो बावड़ी है, हमारे गांव में तो कुआं है, हमारे गांव में तो झील है, राइट। सो एडिंग द कॉन्टेक्स्ट, द लोकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप जहाँ पे आपकी मम्मी का गांव है, क्या वहां पे पहाड़ है, यहाँ पे जंगल है, या फिर वहां पर बीचेस हैं? सो एड कॉन्टेक्स्ट, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर प्री रीडिंग स्किल्स। एनी क्वेश्चंस? नो, ओके। What do you see here? Words. Okay, let's look at the Picture first and words. picture. Let's look at the first picture. Can you see there's a little boy and it is written I can see. Can say. आपको क्या लगता है ये क्यों लिखा हुआ है ऐसे?
आई जो है वो एक कलर में है, और कैन के नीचे 3 बिंदु हैं, सी के नीचे 3 बिंदु हैं। ये किस लिए किया गया है? ताकि बच्चा कलर Single letter defined. कर पाए। और ये 3 आई, लेटर। ओके, वरना आई आई क्या है? आई ब्लैक बच्चे कलर से जल्दी अटैच हो जाते हैं, बच्चे कलर जल्दी पकड़ते हैं, इसलिए कलरफुल किया है उसे। क्यों किया कलरफुल? आई को रेड क्यों किया? सिर्फ पूरे सेंटेंस में सिर्फ आई को क्यों किया? क्योंकि वो आई पढ़ाना चाह रहे हैं। आई इज अ काइंड ऑफ अ साइट वर्ड। आपने ओके। देखा है? आई यस अपने आप में एक लेटर है, एक वाल है, और उसकी साउंड ई है या आई है, राइट? और यस आई जो है, कन्वेंशंस ऑफ रीडिंग की बात करते हैं तो आपको पता है ना, आई हमेशा कैपिटल होता है, यस स्पेशल आई होता है। आई कभी भी एक सेंटेंस में स्मॉल में नहीं आता, क्योंकि आई रिप्रेजेंट अ पर्सन, है ना? यस मैम। सो आई को ये बताने के लिए कि आई हमेशा कैपिटल होता है और आई ऐसा दिखता है, दे हैव पुट आई इन अ डिफरेंट कलर। और फिर ये कैन के आगे नीचे 3 डॉट्स क्यों हैं? सी के नीचे 3 डॉट्स क्यों हैं? 2 डॉट्स क्यों हैं, सॉरी? क्योंकि ये 3 लेटर का वर्ड है। CAN इज द 3 लेटर वर्ड। या, वेरी गुड। तो एस हमें क्यों, डबल सी में हम इसको 2 लेटर वर्ड के जैसे पढ़ सकते हैं। सी। हाँ, सो ये जो डबल ई होता है, ये आपके ब्लेंड्स होते हैं और आपके डायग्राफ्स होते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे जब हम फोनिक सेशंस करेंगे। बट कुलदीप जी, ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब आप छोटे बच्चों को हम रीड कराते हैं तो हमने क्या बात करी थी? फिंगर पेसिंग वाइल रीडिंग। व्हाट इज दिस ओके। कॉल्ड? इंडिकेट फिंगर करने के लिए। वाइल रीडिंग। फिंगर पेसिंग। एवरीबॉडी रिपीट आफ्टर मी, फिंगर पेसिंग। वाइल फिंगर रीडिंग। Finger pressing. और ये जो आपने नेक्स्ट पिक्चर में देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन ऑफ लैंग्वेज, वो हमें यस। कैसे दिख रही है? कहाँ पे दिखी? एरो से? एरो मार्क। वाइल से। यस। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें हमने एरो मार्क किया कि आपको MAJ से नहीं पढ़ना शुरू करना। आपको कहाँ से पढ़ना शुरू करना है? जे से। जैसे और AAM। कितने, हर एक लेटर की एक साउंड है, हर एक सिंबल की एक साउंड है। च, आ, जैम, जैम। और अगर आप बच्चे के साथ बैठे हो, यू रीड लाइक दिस, आ, जैम। ओके? और आप अपनी फिंगर रख के बच्चों को पढ़ाएंगे और रिपीट करने को बोलेंगे, राइट? आप उनके साथ मॉडल करेंगे रीडिंग कैसे होती है। नाउ लुक एट दिस थर्ड पिक्चर। कैन यू सी माई स्क्रीन? देर इज अ कैट ऑन अ मैट। आप में से किसी एक को यस कैमरा मैम। ऑन करके मुझे रीड करके सुनाना है। कैमरा ऑन कीजिए, वॉलंटियर कीजिए। कौन मुझे रीड करके सुनाएगा? कैसे आप रीड कराएंगे? A cat on a mat. अ A कैट, bat. A अ cat. कैट, A cat on a mat. Mat. नो, A प्लीज cat. टर्न ऑन योर Cat वीडियो। डिड on यू a टर्न? mat. A cat on a mat. A cat on a mat. Did you use your fingers, Kuldeep ji? Did you do finger pacing? Do a finger pacing. अपनी फिंगर, अपनी इसको पिक्चर को रखिए। A Yes. cat A cat on on. a mat. आपने बहुत जल्दी बोला। A mat. A Okay, okay. A cat on cat a mat. on a mat. Mat. Right? और बच्चों के लिए इस चंकिंग को करना बहुत जरूरी है। अ कैट ऑन अ मैट। पहले आप धीरे धीरे इंडिविजुअल साउंड्स बोलते हैं। अ कैट, अ कैट,
on a mat, on a mat, इसे क्या बोलते हैं? चंकिंग। पहले आपने इंडिविजुअल पढ़ा अ कैट, फिंगर पेसिंग करके, फिर आपने उसकी चंकिंग करी अ कैट, राइट? फिर आपने ऑन अ मैट पढ़ा, फिर उसकी चंकिंग करी और बोला ऑन अ मैट, फिर आपने पूरे सेंटेंस की लिंकिंग करी और बोला अ कैट ऑन अ मैट। बच्चे को मीनिंग समझ में आया कि अ कैट अलग नहीं है, ऑन अ मैट अलग नहीं है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब है अ कैट ऑन अ मैट, क्योंकि कहीं पे भी लिखा तो नहीं है ना कि अ कैट सिट ऑन अ मैट। पर जब आप उसे बोलते हैं अ कैट ऑन अ मैट, एक कैट है ऑन अ मैट है, पर जब मैंने बोला अ कैट सैट ऑन अ मैट, तो आपको पता चल गया सैट ऑन अ मैट। पर अगर मैंने बोला अ कैट ऑन अ मैट, तो आपको पता चल गया कैट मैट पर है और वो बैठी हुई है। तो चाहे हमने सिट नहीं बोला, बट द मीनिंग मेकिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज योर एबिलिटी टू रीड। बच्चे रीड कर लेते हैं पर मीनिंग नहीं बना पाते। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, टीचर्स? Yes. So now Yes, you're ma'am. understanding chunking, right? Yes, ma'am. What is this on my screen? First book review. My past book review. Title, author. This book made me feel. Ma'am, this is front cover. Okay. This activity is called a book review. आपके पास जब भी 3 साल का बच्चा भी आता है, मैंने आपको 2 फॉर्मेट्स दिए हैं। आपको मैंने अभी भी बताया जब हम ये रीड कर रहे थे कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज, 5 to 6 ईयर रिव्यू द स्टोरी बुक। आप कोई भी बुक उनको पढ़ा रहे हैं, स्टोरी बुक पढ़ाते हैं बच्चों को इस एज स्टेज में, स्टोरी बुक पढ़ा रहे हैं, रिव्यू करने का क्या मतलब है? तो 5 से 6 साल का बच्चा ये बुक रिव्यू यूज कर सकता है। टाइटल क्या था? या टाइटल वॉज जेम्स द लॉस्ट एलिफेंट। ऑथर कौन था? जूलिया डोनाल्डसन। बुक पढ़ के मुझे कैसा लगा? बच्चा इसमें कलर करेगा। माय फेवरेट कैरेक्टर, एक 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा आराम से ड्रॉ कर सकता है, और कुछ बच्चे लिख भी पाएंगे एटलीस्ट द फर्स्ट लेटर और द सेकेंड और थर्ड लेटर, और बीच में से सारे लेटर्स खत्म। एलिफेंट को वो लिख देंगे LEELIFT, पर उनके लिए इसका मतलब यही है कि वो एलिफेंट है, और इतना आप एज अ टीचर समझ जाएंगे, राइट? और इनको हम क्या बोलते Okay. हैं? इन्वेंटिव स्पेलिंग्स। क्या बोलते हैं? Inventing spelling. नॉट इन्वेंटिंग, इन्वेंटिव। Inventive. इन्वेंटिव स्पेलिंग्स का मतलब है कि बच्चे सारे वर्ड्स को सारे लेटर्स को एक वर्ड में नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा, पर जो साउंड्स मोटी मोटी एम्फसाइज हो रही हैं, वो जैसे अभी आपने ही पकड़ा, आपने इन्वेंटिंग पकड़ा, इन्वेंटिव नहीं पकड़ा, Yes, राइट? ma'am. Mm-hmm. तो आपने Yes. भी, यू ऑल्सो शोड व्हाट यू कुड हियर, नॉट विद एम्फेसिस, नॉट विच वॉज साइलेंट, क्योंकि जब मैं इन्वेंटिव बोल रही हूं तो वो आईएनजी सुनाई नहीं दे रहा। तो बच्चे के लिए भी जो कि अभी अपनी वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे हैं, साउंड लेटर एसोसिएशन बना रहे हैं, साउंड लेटर एस स, अभी उनके दिमाग में एसोसिएशंस बन रही हैं, ब्लेंडिंग हो रही है। तो वो एलिफेंट को सुनेगा तो वो लिखेगा एलिफेंट, LEELE फेंट, FNT, वाल्स नहीं लगाएगा, कुछ वर्ड्स खा जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकता है, लिख भी सकता है। माई फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी वॉज वेन ही सेड मॉमी डैडी वेयर आर यू, एंड आई फेल्ट वेरी सैड। This is called a book review activity, which is again the part of your pre-reading, and I would also say this is a part of your pre-writing skills. बच्चा लिख के बता सकता है, बच्चा ड्रॉ करके बता सकता है,
बच्चा इन्वेंटिव स्पेलिंग्स लिख सकता है। मेक सेंस टीचर्स? तो यस अभी मैम। आपका अगर 3 साल का बच्चा है तो आप उसे कौन सा बुक रिव्यू दोगे? लेफ्ट वाला या राइट वाला? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड मैम। क्यों देंगे सेकंड? मैम इमोजीज थोड़ा इजी टू टफ पे जाएंगे मैम। छोटा या बच्चा है। या सो दिस में बुक मेड मी फील। और बच्चा अपना स्टोरी का एक फेवरेट वो बना सकता है, इलस्ट्रेशन बना सकता है, जेम्स बना सकता है। बट जो सेकंड वाला है, यू कैन गिव इट टू 4 ईयर 5 ईयर चाइल्ड, 4 to 5, 5 to 6, क्योंकि अब आप उसको डीप थिंकिंग सिखा रहे हो, फेवरेट पार्ट भी बता रहे हो, फेवरेट कैरेक्टर भी पूछ रहे हो। And this activity, my dear teachers, is called a book review activity. Was it called? बुक रिव्यू Book एक्टिविटी। review activity. Got it? Now look at these activities. Can you see my slide? This is a gingerbread man sequencing cards. Can you see there are different cards and the child is trying to put them in the sequence. यस मैम। And then there is a gingerbread man again, where there are numbers written. आपको ये ऐसे लाइन मिलेगी और बच्चा इसमें कार्ड्स लगा सकता है। और फिर एक थर्ड सीक्वेंसिंग एक्टिविटी है जिसमें जिंजर ब्रेड मैन की पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और बच्चों को पिक्चर्स के अगेंस्ट सेंटेंसेस लगाने हैं। और एक ये आपका स्टोरी मैट है जिसमें सारे कैरेक्टर्स बने हुए हैं। तो अब आप बताइए मुझे कि ये 3 to 4 ईयर के लिए शुरू करें प्री रीडिंग स्किल। बच्चे को हमने स्टोरी सुना दी रीड अलाउड सेशन में। अब बच्चे से हमने एक प्री रीडिंग स्किल एक्टिविटी करानी है। आप कौन सा यूज करेंगे? क्या हम ये स्टोरी बोर्ड यूज कर सकते हैं? 3 से 4 साल का बच्चा है। यस मैम कर सकते हैं पिक्चर रीडिंग ओके स्टार्टिंग। सो अर्पिता कैसे करोगे? कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? मैम हॉर्स की जैसे लाइक हॉर्स दिख रहा है मैम इसमें एंड डॉक्टर सॉरी कैट कैट पिग काउ से रिलेटेड हम कन्वर्सेशन कर सकते हैं बच्चों से क्योंकि आसपास हम सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्ट सबसे पहले कैट डॉग काउ इनसे ही करते हैं मैम। तो इससे रिलेटेड पिक्चर देख के वो उससे रिलेटेड सेंटेंस और वर्ड्स कुछ बोल सकते हैं और मैम। हम बता स्टोरी से कैसे रिलेट करवाओगे? जो उन्होंने जिंजर ब्रेड मैन की स्टोरी पढ़ी है उससे कैसे रिलेट कराओगे? उन्होंने ये स्टोरी पढ़ी है जिंजर ब्रेड मैन की और ये सारे स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं। तो ओके हम मैम। बोल सकते हैं ओके अर्पिता, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? डू यू हु ओके व्हाट वाज द स्टोरी अबाउट? किसके बारे में स्टोरी थी? क्या स्टोरी लिटिल ओल्ड वुमेन के बारे में थी? हम्म। अच्छा, उस स्टोरी में लिटिल ओल्ड वुमन ने क्या बनाया था? जिंजर ब्रेड मैन। बच्चा जिंजर ब्रेड मैन नहीं बोलेगा अगर शायद 3 साल का होगा, बोलेगा केक बनाया था। उस केक को यस क्या मैम। नाम दिया था? जिंजर ब्रेड मैन। वो जिंजर ब्रेड मैन हम्म कैसे लगता था? उसकी आंखें थी, उसका स्माइली फेस हम्म था या सैड फेस था? और फिर जब उसने उसको बना दिया तो किस में बनाया था? अवन में बनाया था हम्म या फिर उसको उसने माइक्रोवेव में बनाया था? अवन में बनाया था। अवन कहाँ पर है? कैन यू पुट योर फिंगर? अवन है। So this is यस मैम। how through a conversation and your questions, you are trying to make the child recall the story. Recall. What is this called? Recalling. और
दोबारा याद करना। मैं सभी सेशन शुरू करती हूँ, आपको रिकैप कराती हूँ ना कि हमने Yes, पहले क्या ma'am. पढ़ा था, Yes, ma'am. right? And then look at this second story where second activity, sequencing cards. Can we use it for 3-year, 4-year, 5-year, every age group? Yes, ma'am. Yes, we can use it for 4 years. We can give them cards and we can give them these empty boxes. और हम बच्चे को बोल सकते हैं कि ये फर्स्ट और सेकंड पिक्चर बने हुए आगे के सारे कार्ड्स को लगा के स्टोरी को सीक्वेंस करो और फिर बच्चा रीटेल करे स्टोरी. So once upon a time, there was. So how do we start a story, Vandana? Once upon a time, there was a very old woman. और अगर आप अच्छी वोकैबलरी बोलेंगे, बच्चा भी अच्छी वोकैबलरी बोलेगा. Got it? Yes. This is called retelling the story or re-narrating the story. And then if your child is 5 to 6 जिसमें उसको आपने लेटर्स इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, तो वो लेटर्स को सीक्वेंसेस को मार्क कर सकता है लेटर से कि ये 5 नंबर पे आएगी, ये 6 पे आएगी, या आप लेटर को नंबर को छोड़ सकते हैं, बच्चा नंबर्स खुद लिखे. राइट? And then if the child is 6 years old, you could even give him this sentences because उसको कुछ ना कुछ, you can do it with grade 1, you can do it with grade 2 also. But हम अभी यहाँ पर 3 to 6 years की बात कर रहे हैं. नर्सरी, LKG, UKG, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6. But कुछ बच्चे are really good at reading. वो ऐसे short sentences अगर आप उनके साथ finger pacing करके बार बार रीड करेंगे, she, क्योंकि ये sight words हैं, ये phonetically नहीं बोले जाते हैं, ये ऐसे होते हैं. to, वैसे देखा जाए तो वो टो बनेगा पर हम उसको टू बोलते हैं. me, is, that, there, ये सारे साइट वर्ड्स हैं. जब आप ये बार बार साइट वर्ड्स बच्चों के सामने लाते हो, रीड करते हो, वो अगेन द पार्ट ऑफ विजुअल मेमोरी बन जाते हैं. गॉट इट? So today we are going to just stop here at the pre-reading skills and activities, and tomorrow we will start about pre-writing activities under the literacy skills. Okay? और ये सब कुछ आप स्टोरी सर्कल टाइम में कर सकते हो, कॉन्वर्जेशंस कर सकते हो, और आप अपने बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स में या इंडिविजुअल एक्टिविटी दे सकते हो करने को. राइट? Okay, ma'am. Any questions so far? Teachers? No? Okay, then we shall meet tomorrow and continue talking about the pre-writing skills. All right? Thank you so much. Bye-bye for now. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye, bye. Thank you, ma'am.